children, how are you all? कैसे हैं सब? Fit and fine, healthy? Okay, very nice. Now today in this video we are going to start with the further syllabus of T3 and the next chapter in T3 in English 1 is chapter number 3 and the name is The Selfish Giant. The name of the chapter is The Selfish Giant and the writer of this chapter, the story is Oscar Wilde. ठीक है? He is the writer and the name of the writer is Oscar Wilde. So in this story, before starting in this story, I'll tell you what is there. The story is about a giant, selfish giant. Giant is a person who is bigger in size than a normal size. Enormous, very big, huge, बहुत बड़ा. Selfish means the person who thinks about himself, जो अपने बारे में सोचता है, जिसको अपने बारे में पता होता है कि I am there only, जो काम करना है मुझे अपने लिए करना है. Loves himself, अपने लिए, दूसरे के बारे में नहीं सोचना. Don't care about others. ठीक है? जो अपने आप को प्यार करता है, किसी और को प्यार नहीं करता है. The person who does anything for himself only. So that type of person is known as selfish. So this story here is about the selfish giant who lived in a big castle. Castle means a big house. महल type जो castles होते हैं, है ना? And he was very selfish. He never allowed anyone to come to his house. He used to live all alone. He loved living alone. And what happened with him once, और उसके साथ क्या हुआ एक बार कि उसका पूरी लाइफ चेंज हो गई. He got changed and he also got himself changed. वो भी बदल गया. His life changed and he also got changed. वो भी चेंज हो गया. But what happened? ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ में once जिसकी वजह से वो selfish था. सबको पता था he was very selfish. But something happened, strange happened with him कि उसकी जो लाइफ थी totally change हो गई. So in further story we'll read about this, that what happened with him, that he got totally changed. Oscar Wilde 1854 to 1900 was an Irish poet and playwright. His stories for children have become classics. The moving story of The Selfish Giant shows us that love and kindness have the power to melt even a stern giant's heart and bring spring into his garden. Now, as I told you, the writer of this story is Oscar Wilde. His birth was in 1854 till 1900 he lived. Was an Irish poet. Irish means belong to Europe. The people who belong to Europe. And playwright. He used to write play also, stories and plays also, short plays. नाटक जिसे कहते हैं, plays. His stories for children have become classics. The moving story of The Selfish Giant. He has written the story also, The Selfish Giant, and it is very heart-touching story. बहुत अच्छी दिल को छूने वाली story, and we get to learn something from this. It tells us that love and kindness. What is in the story? In the last you will get to know love and kindness, प्यार, दया, दयालु, kindness, ठीक है, have the power to melt even a stern giant's heart and bring spring into his garden. Stern here means rude, strict. There was a giant, he was very rude, very strict, बहुत ही harsh था, बहुत सख्त था, कठोर था, किसी से प्यार नहीं करता था. तो ये कहानी उस giant के बारे में है. Giant means big, enormous in size, बहुत बड़ा आदमी था. तो उसके बारे में ये कहानी है कि कैसे प्यार और दया से हम फीलिंग से हम कैसे एक कठोर दिल इंसान को भी चेंज कर सकते हैं. एज द जाइंट इन द स्टोरी गॉट चेंज. जैसे कि इस कहानी में जो जाइंट की बात करी गई है वो भी इन फीलिंग्स के साथ चेंज हो गया. Once there was a giant who lived in a castle and had a beautiful garden. The garden was full of lovely flowers, green grass and peach trees. Every summer the trees bore delicious sweet fruit. Once there was a giant who lived in a castle. Castle means a big house. बहुत बड़ा घर जो होता है, महल जैसे जो घर होते हैं, that is castle. That had a beautiful garden. और उस castle के बाहर एक बहुत बड़ा सुंदर सा गार्डन भी था.
The garden was full of lovely flowers. What is there in the garden? Flowers, grass and peach trees. Peach क्या होता है? Peach is a type of a fruit. आड़ू देखा है? हिंदी में आड़ू कहते हैं उसको. येलो कलर का होता है, येलो एंड रेड मिक्स. ठीक है, which has a big seed inside. That is known as peach. Peach trees. Every summer the trees bore delicious sweet fruits. Bore means to grow, to come out. पैदा होना, उगना, जो चीज़ उगती है, bore. ठीक है. So एवरी समर गर्मियों में पेड़ों के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल, फ्रूट्स, टेस्टी फ्रूट्स आते थे. वन डे द जायंट डिसाइडेड टू विजिट अ फ्रेंड हु लिव्ड फार अवे इन द माउंटेन्स. वन डे ही डिसाइडेड टू गो टू विजिट हिज फ्रेंड हु लिव्ड फार अवे इन द माउंटेन्स. पहाड़ों में उसका एक दोस्त रहता था, तो उसने एक दिन डिसाइड किया दैट ही शुड गो एंड मीट हिम. ही लेफ्ट हिज कासल एंड नोबडी सॉ हिम फॉर मेनी ईयर्स. तो ही वेंट अवे फ्रॉम देयर एंड बहुत सालों तक उसको किसी ने नहीं देखा वहाँ पे. वो वापस नहीं आया. फॉर सो मेनी ईयर्स नोबडी हैड सीन हिम. व्हेन द जायंट वाज अवे, लिटिल चिल्ड्रन हु लिव्ड नियर बाय फाउंड हिज लवली गार्डन. अब जब वो चला गया वहाँ से, कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई नहीं दिया, सो वहाँ के जो बच्चे थे, द चिल्ड्रन अराउंड, दे फाउंड दैट गार्डन दैट इट वॉज फ्री. नोबडी वॉज देयर. सो they began to visit the garden every day after school. After school, when they used to pass out from there, so they used to go in that garden. They played in the grass, climbed on the trees and sang in the branches. वो गार्डन में खेलते थे, मस्ती करते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे और गाना गाते थे. Every summer they ate the sweet peaches from the trees. और हर गर्मियों में जब उस गार्डन के अंदर जो ट्रीज थे, पीच ट्रीज, उनके ऊपर जो पीचेस आते थे, उनको तोड़ तोड़ के वो खाते थे. दे वर वेरी हैप्पी. बहुत खुश थे. बहुत सालों तक वो जायंट वापस ही नहीं आया. एंड द चिल्ड्रन दे डेली यूज टू गो टू द गार्डन आफ्टर द स्कूल एंड एन्जॉय देमसेल्व्स. आफ्टर 7 years द जायंट केम बैक. नाउ द टाइम हैज़ कम. आफ्टर 7 years द जायंट केम बैक. वो वापस आ गया 7 साल के बाद, 7 years. व्हेन ही सॉ the children in his garden, he was furious. और जब वो वापस आया, जब उसने बच्चों को देखा गार्डन में, he got furious. Furious means angry. बहुत आग बबूला, गुस्सा, angry. उसको बहुत गुस्सा आया है उसको गार्डन में देखकर. क्यों? क्योंकि उसको कोई पसंद नहीं था. वो बच्चे उसको अच्छे नहीं लगते थे. कोई उसको पसंद ही नहीं था कि उसके घर में कोई आए. तो when the children were playing, when he saw, he got furious. उसको गुस्सा आ गया. Go away and don't ever come back, he shouted. जोर से चिल्लाया बच्चों के ऊपर, जाओ यहाँ से और दोबारा वापस कभी मत आना. दिस इज़ माई गार्डन एंड नो बडी कैन प्ले हेयर. ये मेरा गार्डन है. उसको हर चीज़ अपनी प्यारी थी. वो चीज़ जो थी वो मेरी है. वो अपने से प्यार करता था और यहाँ पे कोई नहीं खेल सकता. नो बडी कैन प्ले हेयर. ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन एंड रोट अ साइन इन बिग लेटर्स, डू नॉट एंटर. उसने क्या करा, जब बच्चे वहाँ से चले गए, उनको भगा दिया उसने. देन ही मेड अ बिग वॉल. उसने बड़ी सी एक ऊंची सी दीवार बना दी गार्डन, जिससे कि कोई उसके गार्डन के अंदर ना आ सके. और बाहर उसने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा दिया. साइन बोर्ड मीन्स एक टैग लगा दिया और उस पर लिख दिया डू नॉट एंटर. कोई अंदर नहीं आ सकता है. बाहर उसने ये लगा दिया. अब और लोग डर गए कि और ज़्यादा अब ये स्ट्रिक्ट हो गए, तो उसने ये साइन बोर्ड लगा दिया और सबको अंदर आने से मना कर दिया. The children were very sad. Every day as they walked past the wall, they remembered the beautiful garden and all the fun they had playing in it. अब बच्चे बहुत उदास हो गए थे. They were very sad, very upset. Because why? Every day as they walked past the wall, they remembered the beautiful garden. अब रोज स्कूल का जो उनका रास्ता था, वे था, वो वहीं से जाते थे. They used to cross from there only for their school and for their house. So when they used to cross from there, they used to see that wall. और बाहर जो साइन लिखा हुआ था, तो बड़े उसको देख के बहुत उदास हो जाते थे. एंड दे यूज्ड टू रिमेंबर कि जो मस्ती हम वहाँ पर रहकर हमने करी, खेल खेले, मस्ती करी, पेड़ों पर चढ़े, गाना गाया, पीचेस खाए, ये ऑल दीज थिंग दे डिड. दे यूज्ड टू रिमेंबर एंड फील वेरी अपसेट. बहुत उदास होते थे. देन विंटर केम एंड आफ्टर अ व्हाइल स्प्रिंग अराइव्ड. फिर सीजन चेंज होते हैं. देन आफ्टर समर सीजन विंटर केम एंड देन आफ्टर दैट स्प्रिंग केम. The grass was green and there were beautiful flowers blooming everywhere. But the giant's garden was still covered with snow and ice.
Spring did not enter the garden because it saw the big sign. अब क्या हुआ, विंटर्स हुई तो क्या होता है, स्नोफॉल होती है, जगह जगह बर्फ़ जम जाती है. आफ्टर दैट स्प्रिंग सीजन कम्स, देन दैट स्नो मेल्ट्स, फ्लावर्स स्टार्ट्स ब्लूमिंग, बर्ड स्टार्ट्स chirping, चिड़िया चहकने लगती हैं, बहुत अच्छा सुहाना प्लेजेंट वेदर हो जाता है, फ्रेश एयर स्टार्ट्स. ठीक है. बट द गार्डन ऑफ द जाइंट वॉज स्टिल हैविंग विंटर्स. लेकिन उस जाइंट के गार्डन में, उस आदमी के गार्डन में अभी भी स्नो जमी हुई थी, बर्फ़ थी. ओवरऑल इट वॉज कवर्ड विद स्नो. स्प्रिंग डिड नॉट एंटर. स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन में आया ही नहीं. वाई? स्प्रिंग सीजन भी डर गया. बाहर जो उसने साइन लगा रखा था, डू नॉट एंटर, स्प्रिंग सीजन भी उसको देखकर डर गया. दैट सीजन ऑल्सो डिड नॉट कम. द जाइंट वॉज वेरी अनहैप्पी. ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज कासल. अब ये देखकर कि ओ सबके गार्डन्स में स्प्रिंग सीजन आ गया है, बट इन माई गार्डन देयर इज स्टिल विंटर सीजन. वाई इज इट सो? ही वॉज वेरी अपसेट. ही थॉट, ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज कासल. उसने बाहर झांक कर देखा. Where is spring? I hope the cold goes away soon, he said. बाहर देखा, उसने कहा स्प्रिंग सीजन कहाँ है? I hope, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये सीजन आए, he said. But the weather did not change. Snow and ice and the cold wind stayed in the giant's garden. लेकिन फिर भी उसकी आवाज़, उसकी बात किसी को सुनाई नहीं दी. वेदर चेंज नहीं हुआ. उसके गार्डन में अभी भी ठंड का मौसम बना हुआ था. Still there was full of snow and ice in the giant's garden.